ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narad, and the text number 24. त एव वेद दुर्मेधे तयेव वेद दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवं चकार भगवान् एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः. व्यासः कृपणवत्सलः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki. Jai. Translation. Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. Purport. The Veda is one, and the reasons for its division in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge, or the Veda, is not a subject matter which can easily be understood by any ordinary man. There is a stricture that no one should try to learn the Vedas who is not qualified Brahman. This stricture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claims Brahmanical qualification simply by their birthright in the family of a Brahman also claim that the study of Vedas is the monopoly of a Brahman caste only. Another section of the people take this as an injustice to the member of other castes who do not happen to take birth in the Brahman family. But both of them are misguided. The Vedas are subjects which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness. Persons who are in the modes of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. The ultimate goal of Vedic knowledge is Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the mode of passion and ignorance. In the Satyuga, everyone was situated in mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Treta and Dwapar Yugas, and the general mass of people become corrupt. In the present age, the mode of goodness is almost nil, and so for the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage Srila Vyasadeva divided the Vedas in various ways so that they may be practically followed by the less intelligent persons in the mode of passion and ignorance. It is explained in the next shloka as follows. Hare Krishna. तो आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो ये थीम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं श्रील व्यासदेव एक वेद को 4 वेदों में उन्होंने कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया हुआ है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है वो इस श्लोका में बताया है। विशेषतः कलयुग के अंदर हम जितने भी जीवात्माएं हैं इनकी बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बौद्धिक दृष्टि से इतने परिपूर्ण नहीं है कि वो वेदों को समझ सके या फिर वैदिक ग्रंथों का इवन पाठ करने के उनके अंदर इंटरेस्ट जागृत हो, इतना भी हम बुद्धिमान नहीं है। तो ऐसे इंडिविजुअल कलयुग के विशेषता जीवात्माओं के अंदर ये वैदिक संस्कृति के तरफ, शास्त्रों की तरफ कुछ तो उनका आकर्षण हो, इसलिए व्यासदेव ने ये बहुत सारे वेद और पुराण जो है इनका संपादन और संकलन करके इनको कैटेगराइज किया हुआ। विशेषता कलयुग में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगण अपने इंद्रिय तृप्ति के तरफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। There's a lot of attraction, very natural attraction towards sense gratification. तो उस सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी टच करते हुए उस व्यक्ति को
भौतिक जगत में रहते हुए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और आकर्षण कैसा उत्पन्न हो, इसका ख्याल भी श्रील व्यासदेव ने लिखा हुआ है। इसलिए वेद में बहुत सारे ऐसे सेक्शन आते हैं जहां पे हमें फलश्रुति दी जाती है। वो फलश्रुति के स्वरूप में ये अगर कोई सेक्शन पढ़ेगा, ये कथा कोई पढ़ेगा, ये अगर दान धर्म पुण्य कर्म कोई करेगा तो उसे धन प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति होगी, सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। तो इस तरीके की फलश्रुति और बहुत सारा रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है। क्यों? ताकि जो व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, भगवान के भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, परंतु थोड़ा तो भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है या भौतिक ऐश्वर्य जो उसकी तरफ उसका आकर्षण है, तो उसको साधन मात्र समझ के उस व्यक्ति को भगवान के भक्ति में एटलीस्ट वैदिक संस्कृति का कोई तो प्रिंसिपल्स का पालन वो कर सके, इसीलिए व्यासदेव ने ऐसे बहुत सारे जगहों पे फलश्रुति भौतिक तरीके से दी हुई है। परंतु जब व्यासदेव इसी चीज से खुश नहीं थे, तब नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और श्रीमद् भागवतम जब इन भौतिक क्रियाकलापों से कोई भी व्यक्ति पूर्ण उच्च स्तर पे आके सत्वगुण में आता है, मोड ऑफ गुडनेस में आता है, तब उसको भगवत भक्ति प्राप्त होती है और वो श्रीमद् भागवतम के दिए हुए तत्वों का पालन अपने जीवन में कर पाता है। It is always an illusion of a person to consider that my devotional service is actually done on my own strength. I am responsible for my own devotional service and advancement in devotional service. That's a myth. That person is in illusion. Our devotional service is always dependent on the compassion and mercy of devotees. And to attract that devotional service, to attract that compassion of a devotee, we should have submissive hearing, submissive reading, and submissive service towards the Lord and the devotee of the Lord. Otherwise, there will be no advancement. तो जब कंपैशन, हिंदी में मैं बताता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है कि मेरी भगवत भक्ति मेरे ही ऊपर अवलंबित है, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे शक्ति के ऊपर अवलंबित है, तो वो व्यक्ति भ्रम में है। हम अपने खुद के बलबूते पे कभी भी भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए भगवत कृपा हमेशा चाहिए होती है। और ये भगवत कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा विशेषता अगर हमें उसको आकर्षित करना है तो उसके लिए हमें नम्रपूर्वक सेवा करनी पड़ेगी, नम्रता पूर्वक श्रवणम और कीर्तन करना पड़ेगा, तभी जाके भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा हमारी तरफ आकर्षित होगी। तो श्रील व्यासदेव जो है वो भगवान है, श्लोका में लिखा है उनको टर्म आई है भगवान, क्योंकि भगवान के लेखक अवतार है वो, तो उनको भी भगवान के स्तर पे माना जाता है। तो उनका जो कृपावश उन्होंने जितने भी सारे बड़े बड़े ग्रंथ है उनको कैटेगराइज किया हुआ है हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, क्योंकि कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति को कि सारे वेदों का अध्ययन कर सके। भगवत गीता अगर किसी एक व्यक्ति को पढ़ना है, 700 श्लोक है भगवत गीता के अंदर, वो भी पढ़ने के लिए लोगों को लगभग आधा जीवन चला जाता है और वो पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। श्रीमद् भागवतम तो उसके ऊपर 18 स्कंद, आपके 12 स्कंद और 18 ये पूरे वॉल्यूम्स है, उसको पढ़ने में कितना टाइम जाएगा, पढ़ने के बाद भी उसको समझने में कितना टाइम जाएगा। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। When devotee asked Srila Prabhupada how we can understand Krishna, Srila Prabhupada replied, the day when you will understand that you will never understand Krishna, that is actually what a beginning of understanding Krishna. Srila Prabhupada ने उत्तर दिया कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते, उस दिन आप भगवान को समझने की शुरुआत करोगे। इसका मतलब भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान के क्रियाकलापों को भी समझना इतना आसान नहीं है।
इसलिए भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में बोलते जन्म कर्मश्च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जिस व्यक्ति का बुद्धिमत्ता भौतिक है, जिस व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग भौतिक है, उस भौतिक अंडरस्टैंडिंग से और भौतिक बुद्धिमत्ता से हम दिव्य स्तर पे जो चीजें हैं उनको कैसे समझ सकते हैं? बहुत मुश्किल है। दिव्य स्तर की चीजें समझने के लिए हमें भी दिव्य स्तर पे जाना पड़ेगा। उस पद्धति की चेतना, उस पद्धति की बुद्धि हमें आत्मसात करनी पड़ेगी, तब जाके हम दिव्य स्तर पे रहने वाले भक्तों को समझ सकते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं, एक बंगाली में टर्म आती है, आई थिंक चैतन्य चरितमृत से ले, वैष्णव क्रिया मुद्रा बिगे न बुझाए। वैष्णव की क्रियाएं और वैष्णव किस समय क्या करेगा वो किसी को समझ में नहीं आता है। अचानक से वैष्णव कुछ बोल देगा, अचानक से किसी वैष्णव को गुस्सा आ जाएगा, अरे ऐसे क्या हो गया अचानक से। तो विशेषता कोई भी व्यक्ति दिव्य स्तर के ऊपर अगर कार्य करता है तो उसको भौतिक स्तर पे रहने वाले व्यक्ति के द्वारा समझना बहुत मुश्किल होता है। केवल वो दिव्य स्तर पे रहने वाले जितने भी भक्त हैं वही एक दूसरे को उस जो गुडनेस में, प्योर गुडनेस में है, वही केवल भक्तगण समझ सकते हैं। तो अगर हम भक्तों को भगवान के नहीं समझ सकते, उनकी लीलाएं हम जल्दी से समझ नहीं सकते, तो भगवान का अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही मुश्किल है। इसीलिए द सीड ऑफ ऑल नॉलेज, वेद, is not a subject matter which can be easily understood by an ordinary man. हम में से कितने लोग अपने आप को ऑर्डिनरी, साधारण व्यक्ति समझते हैं? हृदय से कितने लोग समझते हैं कि यस आई एम ऑर्डिनरी, आई एम नॉट समथिंग स्पेशल? पक्का 100%? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है अभी तक? हाँ, अब की। तो हम में से हर एक व्यक्ति इतने साधारण है। अगर हम में से किसी को लगता है कि नहीं मैं बहुत स्पेशल हूं, तो घर के जस्ट बाहर आइए और किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश कीजिए, वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। अरे वो तो छोड़ दीजिए, कभी के तो हमारे घर वाले हमारा खुद का नहीं सुनते। हम इतने ऑर्डिनरी है कि हमारे घर वाले भी खुद हमें भाव नहीं देते हैं, तो व्हाट टू स्पीक। तो वी आर वेरी ऑर्डिनरी, वेरी ऑर्डिनरी। हम अपने आप को बहुत वीआईपी समझते हैं अपने ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, परंतु सही में हम वीआईपी है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है हम, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन है हम, विशेषता भगवान और उनके भक्तों के सामने। तो जो व्यक्ति का बुद्धिमत्ता बहुत छोटा है, उसको एक चीज समझने के लिए अगर 10 बार उस चीज को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, विशेषता a + b² = a² + 2ab + b² समझने के लिए हमें लगभग 18 साल लग जाते हैं। तो ऐसी जो छोटी सी बुद्धिमत्ता है हम लोगों की, वो बुद्धिमत्ता से हम भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हम वेद नहीं समझ सकते परंतु भगवान के अंश है, हम में से भी कुछ ऐसे सिंसियर भक्त रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे जिनको भगवान के प्रति भक्ति करने की स्वेच्छा हो ही रहेगी। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे जो सिंसियर सोल्स है, उनको भगवान के प्रति कैसे ज्ञान देना चाहिए, उनको भगवान के प्रति आकर्षण कैसे उपलब्ध करके देना चाहिए, ये व्यासदेव का ध्येय था, ये व्यासदेव का गोल था। और इसी के वजह से उन्होंने ये वेद 4 प्रकारों में डिवाइड करने के बाद भी हम लोगों को श्रीमद् भागवतम दिया है, जो श्रीमद् भागवतम बहुत इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल लेस इंटेलिजेंट पीपल। दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर श्लोक। नाउ अनदर पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, 500 साल पहले ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ था कि केवल ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही पढ़ेगा या उसको पढ़ सकता है, बाकी उसे कोई पढ़ नहीं सकता है। और फिर क्या होता है, देखिए कलयुग में हम कोई भी व्यक्ति अनर्थों से अलग नहीं है, कोई ऑल शुद्ध बन के पैदा नहीं हुआ है करके, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट,
और आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर कुल, और आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर सोसाइटी, और आई एम पर्टिकुलर फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप, ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका इंडिविजुअल नेचर कैसा है। रावण भी ब्राह्मण पिता से जन्म लिया हुआ था, और प्रहलाद महाराज ने भी राक्षस पिता से जन्म लिया हुआ था, और विश्वामित्र मुनि भी जब जन्म हुआ तब उनका क्षत्रिय खानदान में ही जन्म हुआ था, परंतु आपके कर्मों के वजह से वो व्यक्ति क्या हुआ, उच्च स्तर पे पहुंचे हैं। अम्बरीश महाराज देखा जाए तो एक साधारण से क्षत्रिय थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे परंतु क्षत्रिय थे, और दुर्वासा मुनि जो है वो ब्राह्मण थे, परंतु उस ब्राह्मण को क्षत्रिय के सामने झुकना पड़ा, क्यों? भक्ति की वजह से। इसलिए वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस कैटेगरी में कभी नहीं आता है, प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर साधक एंड सिंसियर वैष्णव। Just because I am chanting 16 rounds Hare Krishna Mahamantra, that doesn't mean now I am a शुद्ध भक्त। वो अनर्थों का क्षालन होना चाहिए, तब जाके हम शुद्ध वैष्णव बन सकते। तो ऐसा शुद्ध वैष्णव ये चारों कैटेगरी में कभी नहीं आता है। तो विशेषता किसी का जन्म किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप और कास्ट में हुआ, इसका मतलब इसका कुछ चीजों के प्रति बर्थ राइट हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। 500 साल पहले हमने ऐसे ही वैदिक हमारा जो रिलीजन है उसको बहुत डैमेज किया हुआ है। हमारे जो पूर्वज 500 साल पहले थे उन्होंने केवल ये हमारा बर्थ राइट है, ये करना, ये इस तरीके से जीना, ये करना, वो करना, और तुम नहीं छुओ मत, जाओ मत, करो मत, हंसो मत, खाओ मत, पियो मत करते हुए वी हैव डैमेज्ड आवर वैदिक कल्चर सो स्ट्रांगली। तो भगवान ने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि देयर इज लॉ कि जो व्यक्ति केवल मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण में आता है उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहला के जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारात भवेत् द्विज। तो संस्कार मतलब क्या, केवल रिचुअल नहीं है कि आके केशवपन सेरेमनी हो गया, आके नामकरण सेरेमनी हो गया, आके उपनयन सेरेमनी हो, नहीं। संस्कार मतलब उस व्यक्ति के नेचर, उसके स्वभाव के ऊपर वो इम्प्रिंटिंग होता है, और वो व्यक्ति उस तरीके से पठन पाठन यजन याजन को फॉलो करता है वो अपने जीवन में, फिर वो शुचि मुचि का पालन करता है, उसके अंदर अहिंसा, दया, क्षमा भावनाओं का उद्गम होता है, तब वो व्यक्ति ब्राह्मण के लेवल पे आता है। ब्राह्मण कास्ट या फिर ब्राह्मण पोस्ट या ब्राह्मण जाति से ज्यादा ब्राह्मण स्वभाव है। और जिस व्यक्ति ऐसे मोड ऑफ गुडनेस में आके ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ही हैज दैट राइट टू रीड ऑल द वेदास, टू गो थ्रू ऑल दिस वैदिक स्क्रिप्चर्स। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते कि कुछ लोग बोलते कि दिस इज अवर बर्थ राइट बिकॉज वी हैव टेकन बर्थ इन पर्टिकुलर फैमिली लिनिएज, एंड समबडी से सी नहीं नहीं ये तो गलत बात है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम किससे कम है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते दोनों भी गलत है। बस केवल सबको खुला करके रख दो और सबको एडमिशन दे दो, ऐसा भी नहीं होता है, और केवल मेरा बर्थ राइट है ऐसा भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिकम, वी शुड डिजर्व दैट। Any kind of a knowledge will be imparted you into your heart when you are qualified for that. Otherwise, it will have a reverse effect, right? मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है दुनिया के लिए कितनी अच्छी है, इसमें से कितना अच्छा चीजें होता है, सबके लिए ओपन कर दो, सबके लिए ओपन कर दो, और वो जाके वहां पे आतंकवादी संगठन के लोगों को भी नॉलेज मिल गया तो क्या होगा, फिर कैओस हो जाएगा पूरे दुनिया में। इसलिए हर एक नॉलेज हर एक के लिए ओपन नहीं होता है। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू विल गेट दैट। इसलिए कर्ण को, परशुराम जी को जब पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है तो परशुराम जी ने उसको शाप दिया कि जब तुझे टाइम आएगा तब ये काम में नहीं आएगा ज्ञान तुम्हें। क्यों? क्योंकि कर्ण का वो स्वभाव नहीं था। कर्ण के जीवन में उसका ध्येय केवल एक ही था कि अर्जुन से मुझे कंपटीशन करके अर्जुन से बड़ा महारथी बन के दिखाना है मुझे। तो वो ईर्ष्या की भावना उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट थी, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटी है नहीं। विशेषता
कर्ण ने दुर्योधन के साथ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? ताकि वो अर्जुन को नीचा दिखा सके और उसको वो क्षत्रियत्व का लेबल लग सके करके। और उतना ही नहीं, द्रौपदी माई को उनके मासिक पीरियड के टाइम पे उनके चेंबर में से बाहर खींच के लाने का आइडिया कर्ण का था। उनको निर्वस्त्र करने का आइडिया कर्ण का था। तो वो राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण भले उसको ज्ञान मिला तो भी वो वांछित नहीं था, उसका स्वभाव वैसा था। वो डिजर्व्ड कैटेगरी वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसके पिछले जन्म में भी वो राक्षस था। एकलव्य केवल क्योंकि वो इस पर्टिकुलर लिनेज में या इस पर्टिकुलर कास्ट में जन्मा है, इसलिए उसके साथ कभी भी अत्याचार नहीं हुआ है। उसने ज्ञान प्राप्ति की द्रोणाचार्य से एक छुपके करते हुए, परंतु उसका उपयोग उसने कहा किया एक इनोसेंट जानवर के मुंह को केवल ये करने के लिए गलत इस्तेमाल किया कि कुत्ते का मुंह उसने अपने बाणों से ढक दिया। अर्जुन ने कभी अपने जीवन में ये सब चीजें की हुई नहीं थी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति का स्वभाव क्या है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर जाति और कास्ट और किस जन्म में किस कुटुंब में हमारा जन्म हुआ है, उस हिसाब से अगर भगवान का रेसिप्रोकेशन रहता तो भगवान रामचंद्र कभी शबरी के हाथ से बैर नहीं खाते। भगवान रामचंद्र कभी गुहा को अपने गले नहीं लगाते। भगवान रामचंद्र कभी केवट के नाव में बैठते नहीं, उसको अपना पैर धोने के लिए देते नहीं। कभी भगवान कृष्ण वो कुब्जा के हाथ से चंदन लगा के नहीं लेते। परंतु भगवान ने ये किया, क्यों किया? क्योंकि भगवान के लिए ये जन्म, ये भौतिक शरीर जो है वही तो टेम्पररी है। तो ये कौन से फैमिली में जन्मा है, कौन से बैकग्राउंड में जन्मा है, वो भी तो टेम्पररी है। तो भगवान जो सच्चिदानंद इटर्नल है, अनंत काल से जीते आ रहे हैं, वो टेम्पररी चीजों के ऊपर कैसे रेसिप्रोकेशन करेंगे? वो तो दिव्य स्तर के ऊपर रेसिप्रोकेट करेंगे। हम भगवान बोलते ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हर एक जीवात्मा अगर मेरा पार्ट एंड पार्सल है, वो अगर मेरे से आया हुआ आत्मा है, तो भगवान आत्मा के स्तर पे रेसिप्रोकेट करते हैं, ना कि वो शरीर के स्तर पे रेसिप्रोकेट करते हैं। चित्रकेतु महाराज को जब हर्ष शोक उनका बेटा हुआ था और हर्ष शोक कुछ टाइम के बाद अपना देह त्याग कर दिया, तो उस हर्ष शोक के सामने बैठ के जब चित्रकेतु महाराज शोक कर रहे थे, तो नारद मुनि की कृपा की वजह से हर्ष शोक को वापस एक जन्म मिला, ताकि वो चित्रकेतु महाराज को ये ज्ञान की प्राप्ति दे सके कि इस भौतिक जगत में भगवान आत्मा के स्तर के ऊपर रेसिप्रोकेट करते हैं, ना कि शरीर के ऊपर। भगवान जब बोलते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, तब भगवान शरीर के ऊपर वो नहीं बोल रहे। ऑफकोर्स अगर भगवान को पता है कि ये शरीर इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरी सेवा करने के लिए, तो भगवान उस शरीर की भी रक्षा करते हैं। परंतु शरीर से ज्यादा भगवान भक्तों के चित्त की, भगवान भक्तों की चेतना की और भगवान भक्तों की भावना की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं नमे कौन्तेय प्रति जाने में नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो इसलिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री या चांडाल और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये टेम्पररी डेजिग्नेशंस है। वैष्णव वो होता है जो इन टेम्पररी डेजिग्नेशन से ऊपर उठ के केवल आत्मा के स्तर पे फंक्शन करता है, भगवान को अपना सर्वस्व विभु मानता है, वो अपने आप को भगवान का पार्ट एंड पार्सल अंश मानते हुए भगवान के आत्मिक स्तर के ऊपर और चेतना के स्तर के ऊपर सेवा करता है। वो भक्त क्वालिफाइड होता है सारे वेदों को पढ़ने के लिए और उनका ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए। और वेदों का ज्ञान केवल पढ़ के प्राप्त करने वाला ज्ञान नहीं होता है, वो रियलाइजेशन वाला ज्ञान होता है। हजारों पुस्तकें भी पढ़ने के बाद भी उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वो अपना समर्पण भगवान के प्रति दिखाता नहीं है।
जिस दिन वो समर्पण की भावना उस व्यक्ति के हृदय के अंदर आएगी, वो दिव्य ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकाशित होगा। उस दिन तो उस व्यक्ति को वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भगवान वो ज्ञान उस व्यक्ति को दे देंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के गॉड ब्रदर अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे हुए नहीं थे, परंतु जब वो बोलना चालू करते थे, मेरे गुरु महाराज उनके पुस्तक में लिखते हैं द जर्नी होम में, वो वेदों की तरह उनके शब्द बाहर आते थे एज इट इज। श्रील प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य जो इतने पढ़े लिखे हुए नहीं है, परंतु जब वो बोलते हैं तो वो अपने साक्षात्कार का, अपने रियलाइजेशन के वर्ड्स बोलते हैं। और ऐसे शब्द जब हम शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनते हैं, वो ऑल प्यूरिफाइंग होते हैं, और उन्हीं शब्दों से हमारे हृदय में भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वैदिक नॉलेज इज अ नॉलेज ऑफ रियलाइजेशन, and until and unless we don't do service, humble and menial service, कोई नम्र सेवा नहीं करेगा भगवान के भक्तों के प्रति, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया मतलब भागवत दो पद्धति के होते हैं, एक बुक भागवत, एक पर्सन भागवत। बुक भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद ने लिखे हुए सारे ग्रंथ और पुस्तक, इनको रेगुलरली एवरी डे एक टाइम देके पढ़ना। और पढ़ने से क्या होगा, वो तत्व ज्ञान हमारे हृदय में जब आएगा, तब ये सेंटिमेंटल भावना हमारे हृदय के अंदर आती है ना, कि भगवान की भक्ति हमें करनी है। क्यों करनी है वो नहीं पता है, परंतु करनी है। तो वो सेंटिमेंटल एटीट्यूड जो है वो हमारा दूर हो जाता है अगर हम एवरी डे भगवान के पुस्तक पढ़ते हुए, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हुए अगर बहुत अच्छे से भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो। और दूसरा है पर्सन भागवत, कि भगवान के भक्तों की सेवा करना। अरे प्रभु जी, मैं तो देखता हूं हमारे यहाँ पे तो कोई शुद्ध भक्त दिख नहीं रहा है, परंतु जो व्यक्ति सिंसियरली, भले वो शुद्ध ना हो, परंतु भगवत भक्ति में दिए हुए सारे प्रिंसिपल्स का सच्चे हृदय से पालन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति शुद्ध मानना चाहिए। भगवत भक्ति में प्रोसेस, प्रक्रिया, गोल एंड ध्येय ये अभिन्न है। हमारा प्रक्रिया क्या है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। प्रोसेस क्या है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और हमारा गोल क्या है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। गोलोक वृंदावन में जाके करेंगे क्या, हम सोएंगे नहीं, वहां पे भी हम डांसिंग, चैंटिंग यही तो करने वाले हैं। तो इसीलिए प्रोसेस एंड द गोल आर द सेम। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वही हमें गोलोक वृंदावन में जाके करना है। इसलिए यहाँ पे कोई भी भक्त अगर सिंसियरली, भले उसके हृदय का पूर्णतः शुद्धिकरण नहीं हुआ है, परंतु वो भगवान की सिंसियरली भक्ति कर रहा है और उस प्रक्रिया का पालन कर रहा है, उसको शुद्ध मानते हुए उसकी अगर हम सेवा करते हैं तो उसका फल प्राप्ति भी हमें होगा। फेस्टिवल होते हैं तो आके सर्विंग करना, क्लीनिंग करना, किचन में सेवा करना, भगवान के गार्लैंड बनाना, भगवान का ड्रेसिंग करना, भगवान का आरती करना, भक्तों के हम्बल मिनियल सेवा करना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखना, ये सारी सेवाएं जब हमें करते तो वो भी नित्यम भागवत सेवया में इंक्लूड होता है। और उसी से ही हमारे हृदय में नाम रुचि उत्पन्न होती है। और इस नाम रुचि एक बार उत्पन्न हो जाती है तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति कुछ ज्यादा दूर नहीं होती है। तो वही सेम 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 प्रोसेस हमारे हर एक आचार्य ने हमें बार बार दी हुई है, प्रोवाइडेड हम उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए, तब जाके हमारे हृदय में वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है। एंड विशेषता श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भगवत भक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कंटिन्यू करनी है, अच्छे से 16 माला का जप अगर किसी को अपने जीवन में करना है, तो विशेषता उसको सत्वगुण में आना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति पैशन और इग्नोरेंस में रह के, रजोगुण और तमोगुण में रहते हुए भगवत भक्ति नहीं कर सकता है, नहीं तो उसकी भगवत भक्ति चलते चलते कब छुम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हमें गुडनेस में आना है, सत्वगुण में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना, शुचि मुचि स्वच्छता का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, और जो पैशनेट चीजें हैं उनका त्याग करना। इनसे हमारे जीवन में गुडनेस, विशेषता कोई भी व्यक्ति
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 मालाओं का अगर जप करता है और 4 नियमों का अच्छे से पालन करता है, तो वो मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण अपने आप उसके हृदय में आ जाता है। वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट गुडनेस इन योर हार्ट, प्रोवाइडेड you should chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra and follow the 4 regulative principles with sincere heart. Then that mode of goodness is very much easily available for all of us. And then जब goodness आता है, हमारा जप भी अच्छा होगा, श्रवणम भी अच्छा होगा, हम एसोसिएशन भी अच्छे से लेंगे और भक्ति हमें बर्डन नहीं लगेगा। भक्ति हमें बहुत हंसता खेलता एक प्रोसेस लगेगा। अन्यथा कौन था वो व्यक्ति जो मुझे इस्कॉन लेके गया, कौन था वो व्यक्ति जिसने मुझे माला हाथ में दी, ऐसा सर पे बोझे की तरह लगेगा भक्ति हमें। और हम हमेशा देखेंगे कैसे मैं भक्तों से दूर रह सकूं, कैसे मैं कौन सा रीज़न बता पाऊँ ताकि मैं क्लास में ना जा पाऊँ, ना मैं संडे फीस्ट में जा पाऊँ। तो भक्ति हमारे लिए गलत ग्रह नहीं बनना चाहिए कभी भी जीवन में। इसी के लिए भगवत भक्ति करने के लिए और बहुत खुशी से करने के लिए हमें मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।